Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video I will be starting with GA 2017 general aptitude part. Before starting up with this video, two things which I want to tell you is that see, general aptitude is as important as the chemistry section, so you have to attempt it at any case. Second thing, though it is not a compulsion, but it is highly advisable that you do the general aptitude part before you go to the chemistry section, because at that time, because when you start doing the chemistry section, you won't be able to get your time to get back to the जनरल एप्टीट्यूड. तो इनिशियली आप जो भी अभी अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली अपना जनरल एप्टीट्यूड आप फिनिश कर दीजिए एंड देन यू जंप टू केमिस्ट्री फॉर द फर्दर प्रोसेस. एंड यू हैव टू अटेम्प्ट जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट नहीं किया देन यू आर लूजिंग, यू आर पुटिंग योर रैंक एट स्टेक. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, it is the 56th question. GATE 2017 ka, it is written, she has a sharp tongue and it can occasionally turn. So we have to fill that what is the correct word suiting over here. It can turn hurtful, it can turn left, methodical or vital. तो इसमें जो बेसिक आंसर है वो हर्टफुल ही है, क्योंकि दे आर टेलिंग शी हैज अ शार्प टंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा बोलती है. और इट कैनॉट टर्न लेफ्ट, इट इज इलॉजिकल, मेथोडिकल नहीं होगा और वाइटल भी नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा. तो अल्टीमेटली इट विल बी हर्टफुल. इट्स वेरी सिंपल. टॉकिंग ऑफ 57th क्वेश्चन, आई डैश मेड अरेंजमेंट्स had I dash informed earlier. So बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन है. इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, could have, that I could have made arrangements had I been informed earlier. So it is suiting. So let us look out to the next options. I would have made arrangements. See, would have और could have में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. Both can suit. Even could have could suit and even would have can suit here. So I would have made arrangements had I dash. तो इसमें being है, तो जब भी had लगेगा तो had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ब लगेगा, तो being लगेगा. सो दिस इज जनरल केमिस्ट्री टर्म, तो इसीलिए being तो नहीं लगेगा. और अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो आई डैश मेड अरेंजमेंट्स, तो आई हैड मेड अरेंजमेंट्स तो नहीं होगा. आई कुड हैव, आई वुड हैव ही होगा. तो ए और बी में से ही होगा. एंड अमंग ए एंड बी, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी वाले में जो उन्होंने बीइंग यूज कर लिया है. इसमें कुड हैव और वुड हैव में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं. वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑन बेसिस ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज बीइंग. So this is to be used over here. Talking of 58th question, simple questions हैं. Talking of 50th question, it is written that in the summer, water consumption is known to decrease overall by 25%. A water board official states that in the summer household consumption decreases by 20%, while other consumption increases by 70%. So ये mathematical question है, इसे हम mathematically solve कर सकते हैं, ठीक है. और ये statement पूछ रहे हैं कि what is the ratio of household to other consumption, और या तो ये पूछ रहे हैं and they are pushing whether there is an error in the statement. So let us do it. अगर हम मान के चलें कि Z is the total consumption and X is the consumption of household plus Y is the consumption of water other than households, ठीक है, the rest one. So they are telling that in summer the water consumption is known to decrease by 25%. So इसका मतलब जो total water consumption है, जो कि Z है, it has to decrease by 25%. That means it has now become 75% of what it was initially. Decreased by 25% मतलब वो initially अपना initial का 75% हो गया. तो 0.75 of the initial value. Okay, this is what we have to write. And then they say that a water board official states that in summer household consumption decreases by 20%. कंजम्पशन हाउस होल्ड डिक्रीजेस बाय 20%, मतलब जो अब हमारा प्रेजेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो है 0.8%. ओके, प्लस while the other consumption increase by 70%. So now if it was y, it is increasing by 70%. That means y plus 0.7y, it is coming out to be 0.7y. ठीक, 1.7y. So it was actually x minus 0.2x. क्योंकि 0.2 20% कम हो गया, तो इट इज अल्टीमेटली कमिंग आउट टू बी 0.8x. ठीक है, हमें यहाँ पर x by y की रेशियो निकालनी है. ठीक है, जनरल x और y निकालना है या x by y की रेशियो निकालनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हर टर्म को इस फर्स्ट इक्वेशन को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दो इक्वेशंस हैं,
तो z हमको चाहिए नहीं, x by y चाहिए, तो वी कैन फॉर्म इट. वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 0.75. सिंपल है. 0.75 z will be equal to 0.75 x plus 0.75 y. और अगर हम माइनस कर दें तो इट विल बिकम 0. 1 minus 2 करेंगे तो 0 will be equal to 0.05 x. और अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1.7 minus 0.75 it is 0.95 y. तो अगर हम x और y को निकालने की रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो 0.05 x will be equal to minus of 0.95 y. So देखिए अगर हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे, अगर हम x निकालेंगे तो अल्टीमेटली जो दूसरे कंजम्पशन है वो नेगेटिव में चली जाएगी, विच इज अगेन रॉन्ग. क्योंकि कंजम्पशन कुछ हुआ, अगर ऑलरेडी एक कंजम्पशन है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो टर्म हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर. अगर हम इस वे में देखें, अगर हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो हमको स्टेटमेंट गिवन है ये वाली, दिस इज रॉन्ग. अदरवाइज x और y की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए थी. तो अल्टीमेटली जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट देयर इज सम एरर इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट, बिकॉज x by y अगर आप निकालने की कोशिश भी करें तो वो नेगेटिव में आएगा. फर्स्ट थर्ड तो पहले दिन जो ऑप्शन है वो अल्टीमेटली कट गई क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव में ऑप्शन दिए. तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन बचता है वो बचता है कि देयर इज एरर इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज सम ऑफ वन ऑफ द कंजम्पशन विल कम नेगेटिव. Talking of 59 question, they have written that 40% of the deaths on city roads may be attributed to drunken driving. So, and they have to represent it in a pie chart. और डिग्री में कैसे होगा, तो अगर हम पाई चार्ट की बात करें, इट्स सर्कुलर. ठीक है, सर्कुलर में हम पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर सर्कल है, सर्कल का टोटल डिग्री है 360 डिग्री. ओके, एंड व्हाट वी नीड टू रिप्रेजेंट इज जस्ट 40%. अगर 50% होता तो 180 कर देते. अगर 40% है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 0.4 एंड वी विल गेट द आंसर. तो अगर 0.4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 140 समथिंग. सो 144 ही आंसर है. तो अगर हम 360 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द नंबर ऑफ डिग्रीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 40% इन अ पाई चार्ट. पाई चार्ट हमको पता होना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट्स अ 360 डिग्री, तो बस 360 into 0.4. सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए they are giving you 1 marks. So and they will boost your rank. So it is compulsory that you do general aptitude. Okay. Talking of 60th question, देखिए 60th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं गेट जनरल एप्टीट्यूड में. सम टेबल्स आर शेल्फ्स. आई एम रिप्रेजेंटिंग टेबल्स बाय टी, तो सम टेबल्स आर शेल्फ्स, एंड देन सम शेल्फ्स, नॉट ऑल, सम शेल्फ्स आर चेयर्स. ओके, एंड ऑल चेयर्स आर बेंचेस. ऑल चेयर्स आर बेंचेस. तो ये इन्होंने स्टेटमेंट्स हमको दी है, एंड हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज एट लीस्ट वन बेंच इज अ टेबल. अगर हम बेंच की बात करें तो देखिए बेंच का रिलेशन, इस रिलेशन को हमको ऐसे देखना है, इट डज नॉट गो द रिवर्स वे. इफ ऑल चेयर्स आर बेंचेस डज नॉट मीन दैट ऑल बेंचेस विल बी चेयर्स. रिवर्स नहीं जाएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट रिवर्स नहीं जाएगा, ये फॉरवर्ड में जाएगा ये रिलेशन. ठीक है, तो अगर हम टेबल की बात करें तो सम टेबल्स आर शेल्फ्स. अगर हम यहाँ पर देखें एटलीस्ट वन बेंच इज अ टेबल, तो दैट इज नॉट डूइंग वेल, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये बैक नहीं आता, इट ऑलवेज गो टू द फ्रंट. कि सम शेल्फ्स आर चेयर इज ट्रू, बट सम चेयर आर शेल्फ्स इज रॉन्ग. ठीक है, अगर सम शेल्फ्स आर चेयर है, हमने शेल्फ्स को चेयर बोला है, बट चेयर को हम शेल्फ नहीं बोल रहे. तो दिस इज टू बी नोटेड. चेयर को हम बेंचेस बोल रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग, दिस स्टेटमेंट डज नॉट कम्स टू द रिवर्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच. एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच. तो हमारी स्टेटमेंट आगे की तरफ जानी चाहिए. सम शेल्फ्स आर चेयर्स, और सभी चेयर्स बेंचेस हैं. इसका मतलब सम शेल्फ्स विल बी बेंचेस. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एटलीस्ट वन of the shelf can be bench. Talking of third, at least one chair is a table. At least one chair is a table. तो इसका मतलब we have to go reverse. मतलब हमको चेयर से शेल्फ पे जाना है और शेल्फ से
टेबल पे जाना है तो इसका मतलब जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये गलत है, तो वी कैन नॉट गो रिवर्स, वी हैव टू गो टू द पॉजिटिव, टू द फॉरवर्ड ओनली। हमें जैसे सब सब अगर सम टेबल्स शेल्फ्स हैं तो शेल्फ्स को टेबल नहीं बोलेंगे, टेबल्स को शेल्फ बोलेंगे, पर शेल्फ को टेबल नहीं बोलेंगे। दिस इज व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। ओके, नाउ ऑल बेंचेस आर चेयर्स, अगेन रॉन्ग, ऑल चेयर्स आर बेंचेस बट नॉट ऑल बेंचेस आर चेयर्स। वी कैन नॉट गो रिवर्स, हम रिवर्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, second is correct, third is wrong, and fourth is also wrong. So the option left is B, that only two. At least one chair is a table भी wrong है क्योंकि हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, तो only two क्योंकि इन्होंने C ऑप्शन में 2 and 3 भी दिया है, but the answer should be only 2. इसका आंसर B होगा। Talking of 61st question, it is written here, so it is a long paragraph and we have to tell here the word antagonistic is the closest in meaning to, तो हमको फाइंड करना है कि antagonistic कहाँ पर लिखा है। तो अगर आप पढ़ेंगे इसको properly, if you are looking for a history of India or for an account of the rise and fall of British Raj or for the reason of the cleaving of the subcontinent into two mutually antagonistic parts, ठीक है, तो वी हैव टू गेट द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक। सो दे आर गिविंग अस ऑप्शंस इम्पार्शियल, आर्गुमेंटेटिव, सेपरेटेड एंड हॉस्टाइल। सो बेस्ट ऑप्शन हियर सूट्स इज हॉस्टाइल। अगर आपको बाकी ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, जैसे देयर आर सेपरेटेड एंड हॉस्टाइल, जैसे सेपरेटेड एंड हॉस्टाइल में मुझे डाउट था, तो अगर आपको डाउट है इस चीज में तो डोंट अटेम्प्ट इट, इंस्टेड ऑफ कीप इट, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू मीनिंग। तो हो सकता है कि शायद वहां पर मीनिंग उसका कुछ और हो रहा हो। तो अगर आपको डाउट आ रहा है, इफ यू आर असर्टिव दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, देन गो विद द आंसर। बट इफ यू आर हैविंग सम डाउट्स इन वर्ड मीनिंग्स, एटलीस्ट डोंट अटेम्प्ट, आप उसे वैसे छोड़ दीजिए, बिकॉज अदरवाइज दिस विल गिव यू अ नेगेटिव मार्क। सो इसका आंसर तो यहाँ पर हॉस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। 62nd question is very interesting. They have given a number of people and they are telling, they actually words, and they are telling are seated around a circular table. So T is the neighbor, T's neighbor are Y and V. So we have to draw, we can draw it like this. सर्कल में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। इसके नेबर जो हैं वो एक नेबर Y है और एक नेबर है V, तो दो ही नेबर पॉसिबल हैं जब आप सर्कल में बैठे हैं। Z is the seat third, Z is seated third to the left of T, तो लेफ्ट अगर हम जाएंगे थ्रू दिस, फर्स्ट ये होगा, सेकंड एंड थर्ड, तो Z जो है वो थर्ड है, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ T, देन एंड सेकंड टू द राइट ऑफ S, और S के राइट है, तो अगर हम सेकंड माने किसी के राइट, अगर इस डायरेक्शन में हम लेफ्ट मान रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में राइट होगा, तो सेकंड फर्स्ट, तो यहाँ पर कोई और आना चाहिए, एंड देन इट शुड बी सेकंड टू द राइट ऑफ S, सो देयर शुड बी S ओके, ओके। यहाँ पर एक और आएगा एंड यहाँ पर एक और आएगा, एंड देन दे हैव टोल्ड यूज नेबर्स आर S एंड Y। सो U का जो नेबर है वो है S और Y, तो यानी कि S के साथ यहाँ पर जो आएगा उसके नेबर होंगे Z और S, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म आएगी उसके नेबर होंगे S। अब देखिए जो U है वो यहाँ पर आएगा, इसका मतलब क्या है कि we have to shuffle our this position because it is given that U's neighbors are S and Y, तो Y need to come here, ठीक है, तो we have to shuffle it, तो V यहाँ पर आएगा एंड Y यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो V है वो T के लेफ्ट में है या राइट में है, they have just told that they are neighbors, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, एंड U का जो पोजीशन है वो हमें क्लियर कर रहा है कि U's neighbors are S and Y and T and W are not separated opposite to each other। तो अगर ये एक सर्कल है तो there will be people who are sitting opposite to each other, and they have told that T and W are not seated opposite to each other, यानी कि जो W है वो यहाँ पर आएगा और बाकी बचा S, T, U, V, W, X, तो X आएगा यहाँ पर। So what they have told is who is the third to the left of V। V है, लेफ्ट जाना है यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो अगर थर्ड देखें पोजीशन लेफ्ट ऑफ
v. फर्स्ट पोजीशन ये है टू द लेफ्ट, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो यानी कि x जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v. इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका a, ठीक है x. ये जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं ये अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो उस समय आपको बहुत इजी रहेगा इनको सॉल्व करना, ठीक है. 63rd क्वेश्चन की बात करें, दे आर गोइंग वेरी फास्ट क्योंकि मैथमेटिक्स है बस. ट्रक्स they have told that they are 10 meter long and cars 5 meter long go on a single lane bridge. There must be a gap of at least 20 meters after each truck and a gap of 15 meter after each car. So the truck and car travel at a speed of 36 km per hour. If car and trucks go alternatively, what is the maximum number of vehicles that can use the bridge in 1 hour? तो 1 hour में अगर कार और ट्रक्स का जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 36 किलोमीटर ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 1 आवर में. तो 36 इंटू 1000 मीटर, तो 36,000 मीटर ये 1 आवर में कवर करेंगे. एंड वी हैव टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ ट्रक्स एंड कार्स कैन क्रॉस दैट लेन. तो क्या करना है, अगर हम एक ट्रक की बात करें तो एक ट्रक जो है इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, ओके, और ट्रक के बाद वी हैव टू गिव अ स्पेस ऑफ 20 मीटर, ओके. देन दे हैव टोल्ड दैट इफ कार्स एंड ट्रक्स गो ऑल्टरनेटिवली, अगर मैंने यहाँ ट्रक ड्रॉ किया तो दैट देन आई हैव टू ड्रॉ कार ओवर हियर. तो कार जो है इट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड कार के बाद जो गैप है वो हमें 15 मीटर देना है, ठीक है. अगेन अ ट्रक विल कम, ओके, यहाँ से बाद इसके बाद अगेन से ट्रक again it will be repeated. तो अगर हम इसका डिस्टेंस टोटल सम अप कर लें और डिवाइड कर लें इसके टोटल लेंथ से, तो हमें मिल जाएगा कि टोटल इस तरह के कितने सीक्वेंस बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है. तो अगर हम इसको सम अप करें 10 plus 20 30 35 45 50, it will be 50 meters, okay. 20 plus 20 40 plus 10 50 meters. तो हमें 50 को डिवाइड करना है 3600 से, so ठीक है. and what we have to do is, since so we are getting the number of sequences, so this is the number of sequences that will repeat, and what we need to do again is we have to multiply by 2 because they have told not just this sequence, they have told number of vehicles, और एक सीक्वेंस में 2 व्हीकल्स हैं, एक ट्रक है और एक कार है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी हमको आएगा कि नंबर ऑफ हमारे जो व्हीकल्स हैं वो कितने हैं. सीक्वेंस हमें मिल गया एंड वी हैव टू देन फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स. तो 3600 by 5 into 2, तो 1440 एंड दैट इज आवर आंसर. 1440 ए हमारा आंसर हो जाएगा, ओके. जस्ट वी हैव टू नोट दैट ट्रक एंड कार आर ऑल्टरनेटिव और सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होगा उससे हम कर सकते हैं, ठीक है. ये सिंपल क्वेश्चन है. 64th क्वेश्चन जो है, there are 3 Indians and 3 Chinese in a group of 6 people. So we have 3 Indians and 3 Chinese, okay. How many subgroups of this group can be made so that we choose so that in every subgroup they have at least 1 Indian. So we have to make subgroups और हर सब ग्रुप में कम से कम एक इंडियन होना चाहिए. देखिए ये अगर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है then you can use it and frame the answer, but I don't know its direct जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो नहीं पता. तो what I will do is I will go by logical method that what is the number of groups I can make and how many of them will be repeated. Like अगर मैं सब ग्रुप बनाऊं 6 है, तो मैं फर्स्ट जो सब ग्रुप बना सकता हूँ केवल एक व्यक्ति से, ओनली 1 पर्सन से बना सकता हूँ. तो और ये एक रूल है कि हमें हर पे कम से कम एक इंडियन चाहिए. तो अगर मैं एक ही ग्रुप बना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हर बार एक इंडियन को ले रहा हूँ, यानी कि 3 बार ये मेरे पास आ सकते हैं. 3 ग्रुप्स 1 के बन सकते हैं. अगर मैं 2 पीपल के ग्रुप बनाऊं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 इंडियन होना चाहिए. तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक इंडियन और 2 चाइनीज, एक ग्रुप ऐसा बन सकता है. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 इंडियन हो, सॉरी, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 2 ना, सो द पॉसिबिलिटी इज 2 इंडियन,
ओके, दो चाइनीज हम नहीं ले सकते क्योंकि एक इंडियन हमें रखना ही है, एक इंडियन और एक चाइनीज, ठीक है। जब दो इंडियन है तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसकी हो जाएंगी, जैसे वन टू लिया, वन के साथ टू लिया एक पॉसिबिलिटी, वन के साथ थ्री लिया सेकंड, एंड टू के साथ थ्री लिया, तो इसकी हो जाएंगी तीन पॉसिबिलिटीज। ओके, अब जो है इसमें क्या हो सकता है कि सपोज मैंने I1 लिया, फर्स्ट इंडियन लिया, और फर्स्ट इंडियन के साथ तो तीन चाइनीज आ सकते हैं, तो हर इंडियन के साथ तीन चाइनीज, और तीन इंडियन है तो 3 into 3। ओके, हर इंडियन के साथ तीन चाइनीज आ सकते हैं, तो हमारे पास इंडियन भी तीन है, तो 3 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ तीनों, इसके साथ तीनों, इसके साथ तीनों, तो यानी कि 9 बार हमें ये ग्रुप बनेगा, तो दैट विल गिव अस 9 + 13 12। Okay, now making a group of 3 people. So how we can make the group of 3 people? One Indian should be there, so one Indian and two Chinese. ठीक है? Then what we can do is 2 Indians and one Chinese, and then all 3 Indians. Okay, जब all 3 Indians है तब तो एक ही possibility है क्योंकि तीन ही Indians है हमारे पास। अब देखिए ये दोनों जो सीक्वेंस है वो सेम नंबर ऑफ हमें इवेंट्स देंगे, सेम नंबर हमको देगा क्योंकि एक इंडियन दो चाइनीज और दो इंडियन एक चाइनीज विल गिव द सेम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। अब देखिए क्या हो सकता है कि सपोज मेरे पास इंडियन 1 है, इंडियन 1 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ, दो चाइनीज कौन से, I1 I3 ले सकता हूँ, I1 I2 ले सकता हूँ, सॉरी C1 C2 ले सकता हूँ, या C2 C3 ले सकता हूँ। यानी हर इंडियन के साथ दो पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हैं दो चाइनीज की लेने की, और हमारे पास इंडियन तीन है, तो यानी कि 3 into 3, इसका भी वही हो जाएगा। हर इंडियन के साथ तीन पॉसिबिलिटीज है दो चाइनीज को लेने की, तो तीन इंडियन के साथ तीन हो जाएगी। सिमिलरली ये भी सेम है क्योंकि अगर 1 CC, दिस इज C11 अगेन I है, तो what will be the answer? 9 + 9 18 + 1 19। ओके, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4, अगर मैं 4 का ग्रुप बनाना चाहूं तो 4 का ग्रुप कैसे बनेगा कि एटलीस्ट वन इंडियन हमें चाहिए, तो एटलीस्ट वन इंडियन और चाइनीज, तीनों चाइनीज ले लिए, या फिर दो इंडियन और दो चाइनीज ले लिए, या फिर हम तीनों इंडियन और एक चाइनीज ले लिया। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, इसकी और इसकी पॉसिबिलिटीज तो सेम होंगी। एक इंडियन है, तीनों चाइनीज तो एक ही बार आ गए, पर इंडियन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज तो हो जाएंगी 3। ओके, सिमिलरली आई इसकी पॉसिबिलिटीज भी हो जाएंगी 3, ठीक है, क्योंकि चाइनीज वी कैन चेंज 3 times। अब हमें देखना है कि इंडियंस की पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो 1 और 2, यानी कि हर इंडियन को, दो इंडियन को मैं 3 बार ले सकता हूँ, एक बार 1 2 ले सकता हूँ, एक बार 1 3 ले सकता हूँ, एक बार 2 3 ले सकता हूँ, तो ये तो 3 बार हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास ये भी हो सकता है, तो 3 into 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो टोटल बनेगा, 4 का अगर हमने ग्रुप बनाया है तो ये बनेगा 3 + 9 12 + 3 अगेन 15। और अगर मैं 5 का ग्रुप बनाऊं, देखिए 5 के ग्रुप में क्या होगा, अगर एक इंडियन लेना है 5 के ग्रुप में, तो व्हाट कैन हैपन इज 1 इंडियन 3 चाइनीज, बट अगेन वी हैव टू टेक समबडी एल्स, so 2 इंडियंस मिनिमम, हमें 2 इंडियंस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 इंडियंस एंड 3 चाइनीज, और 3 इंडियंस एंड 2 चाइनीज, तो दोनों का जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। व्हाट कैन हैपन, चाइनीज सेम हो गए यहाँ पर 1 2 3, तो तीनों ही आ गए। इंडियन कितनी बार ले सकते हैं, 1 2, वी कैन टेक 1 2, वी कैन टेक 1 3, और वी कैन टेक 2 3, सो 3 पॉसिबिलिटीज इसकी हैं और 3 उसकी हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएगा 6। इट इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, बट इट इज अ 2 marks क्वेश्चन, तो इसीलिए हम इस पे इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। ओके, अगर 6 पॉसिबिलिटी देखूं, 6 पॉसिबिलिटी में तो सारे ही एक साथ आ जाएंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी एक ही है। तो अगर मैं सम अप करूं तो what will this give me, this will give me 3 + 12 15, 15 + 15 30, 30 + 6 36, 36 + 1 37, and 37 + 19 will give me 56। ओके, तो अगर 56 है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, इट विल टेक टाइम, बट अगर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं
then the investment of time is worth because this is giving you a two numbers. ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो you can skip it. Don't try to get yourself a negative mark. ठीक है, नेगेटिव मार्क से बेटर यही है कि आप उसे अटेम्प्ट ना करें. ठीक है, 65th क्वेश्चन जो है ये भी कंटूर लाइंस के बारे में है एंड दे आर टेलिंग दैट व्हाइल मूविंग फ्रॉम P to Q व्हाट इज द पाथ बीइंग फॉलोड. अगर आप इसे इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो देन व्हाट यू विल फाइंड इज दैट द एट P के नीचे वाला जो कंटूर है, जो लाइन है, दैट इज गिविंग यू अ हाइट ऑफ 550. देन उसके नीचे जो लाइन है दैट इज गिविंग यू हाइट ऑफ 500. यानी कि जब P से जो पॉइंट है अगर हम उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे तो दैट वी आर एक्चुअली गोइंग डाउन. ठीक है, 550 से 500. एंड देन इफ यू सी वेयर द ब्लू डॉट्स आर कमिंग, ब्लू डॉट्स कहां से जा रहे हैं? एक पोर्शन है जहां 500 तो उसको टच कर रहा है एंड देन दे आर गोइंग टू 550 एंड 575. तो यानी कि ये अबव हिल जा रहा है, यानी कि पहले डाउन देन अबव हिल. और अगर आप देखें तो व्हाट क्यू पोजीशन के लिए पहुंचने के लिए उसने क्या किया? पहले 550 को क्रॉस किया, देन इट इज रीचिंग टू 575 एंड देन इट इज कमिंग बैक टू 550 एंड गोइंग डाउन. सो यानी कि पहले वो ऊपर गया एंड देन इट केम डाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम P to Q अगर हम देखें तो पहले इट वेंट डाउन, देन इट वेंट अप एंड अगेन डाउन. सो दैट शुड बी डाउन अप डाउन. ऑप्शन नंबर C शुड बी द आंसर. इट्स वेरी सिंपल. बस यही है कि इट इज गोइंग टू गिव यू 15 मार्क्स एंड यू हैव टू डू जनरल एप्टीट्यूड एट एनी केस. Thank you so much for watching this video. अगर आपको कोई भी डाउट है then you can definitely ask in the comment section.